dielectric. Dielectric, yes sir. And what we did in that dielectric wala portion, I mean, did we only define the dielectric, or we have discussed all the formulas, basic formulas related to dielectric, like polarization, density, electric susceptibility, ये सब करा है हमने, या सिर्फ we just defined the dielectric? What we did? Can you please tell me exactly what we did? आमना, अब्बास, अनुष्का, दिव्यांशी, अजवेरिया और ईशा, any one of you please एग्जैक्ट बता सकते हो कि कौन क्या तो लास्ट सिर्फ डिफाइन किया था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक इंसुलेटर रखा होगा, मतलब ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली रखा होगा। whenever a dielectric is placed in an electric field, the net field inside the dielectric becomes E external minus of E induced. ये यहाँ तक पहुंच गए हम क्या? तो ये लिखा नहीं था, बस इसकी डायग्राम ड्रॉ किया था। डायग्राम ड्रॉ किया था, तो चलो वहीं से बात स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें पीछे की बातें समझ आ जाएं, फिर से मतलब एक बार रिवाइज हो जाए, और उसके आगे जो भी होना है वो तो अभी हम करेंगे। तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग related to this now। कि मान लीजिए कि ये आपने एक प्लेट ले लिया, which is conducting plate, it is a charged plate, and the second plate that I am taking here is another plate like this, ये दूसरा प्लेट, और इन दोनों के बीच में I'll place a dielectric slab, I'll place a dielectric slab in between the two, ठीक है, in between the two I'll place a dielectric slab। ये मान लीजिए कि ये आपका कोई dielectric slab है which has been placed in between the two plates, ठीक है। और मैंने आपसे ये बोला था कि this dielectric slab, if you'll place this in between the two plates such that these two plates has charge densities of plus sigma and minus sigma, this is having a charge density of plus sigma, and the another plate has a charge density equal and opposite charge density of minus sigma, due to which there will be an external field. Let me call this field as E external. So whenever you place a dielectric inside the external field, an internal field induces. And how does that induce? Because all the dipole of the dielectric align themselves in the direction of external field, and ultimately what we get on the two surfaces of the dielectric is the two equal and opposite charges on the two surfaces, and these charges are called as induced charges on the dielectric, and we call it as sigma I. That means one is positive, another one is negative. ये minus of sigma I and this is plus of sigma I. Let the thickness of the slab be T, ठीक है। खैर, तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ना, ड्यू टू दिस इंडक्शन ऑफ द चार्जेस ऑन द टू सरफेसेस, एक अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी which will be called as induced electric field। and why we call it as induced electric field? The reason is कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है inside the dielectric, that is being created due to the induction of the charges on the two surface। मतलब एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस आर अपीयरिंग and on other surface negative charges are appearing, and due to this accumulation of the charges on the two surfaces, we will get a net field inside the dielectric, and the direction of that field will be from positive to negative charge, right? And this electric field will be called as induced field, है ना। तो मैंने आपसे ये बोला होगा कि देखो डाइलेक्ट्रिक में किसी भी इंस्टेंट पे इफ यू ऑब्जर्व द टू फील्ड, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ये जो अंदर जो फील्ड इंड्यूस हुई है और जो बाहर की फील्ड है, अंदर की फील्ड जो इंड्यूस हुई है और जो बाहर फील्ड है, ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल। ये इक्वल कब होते? अगर इफ दिस बीन अ कंडक्टर, तो दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स वुड हैव बीन इक्वल। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है वो एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, मतलब एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है, इन द केस ऑफ कंडक्टर्स। बट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अंदर जो फील्ड होगी वो इंड्यूस तो होगी बट इट विल बी लेस देन दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। तो किसी भी इंस्टेंट पे नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक will be written as the difference of the two field E external minus of E induced। पहले तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, E external minus of E induced। इसका मतलब कि जितने रीजन में आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करोगे, इन दैट रीजन, जितने रीजन में आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करोगे, इन दैट रीजन आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, एंड दैट रिड्यूस्ड फील्ड विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड इंड्यूस्ड फील्ड। क्लियर है? अब इस केस में एक बात तो क्लियर हो गई सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, तो क्या हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिडक्शन सेम वैल्यू से होगा? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। हर डाइलेक्ट्रिक में अलग अलग वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी,
मतलब अगर मान लो कि ये माइका अगर हो और इसमें नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स 4 न्यूटन पर कूलम, तो अगर यहीं पर गिलास लाके प्लेस कर दोगे तो उसमें हो सकता है कि वो 4 कूलम से ज्यादा हो या 4 कूलम से कम हो. It basically depends on the property of the dielectric material, and that property is basically called as dielectric constant. है ना, वो property which will decide कि what would be the value of the net field inside the dielectric, that is decided by a property known as dielectric constant. बात समझ में आ रही है? और dielectric constant को हम define कैसे करते हैं? तो dielectric constant is defined as a ratio of external field upon the net field inside the dielectric. मतलब डायलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड कितनी आई है ना, नेट का मतलब द डिफरेंस ऑफ इंड्यूस्ड एंड एक्सटर्नल. तो नेट कितना है और एक्सटर्नल कितना था, उन दोनों के रेशियो को हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं. दिस के रिप्रेजेंट्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एक बात मैं आपको बताऊं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक बात पहले तो मैं आपको समझाऊं. दिस के हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. This K has nothing to do with electrostatic constant. इससे पहले जो K लिखा था हम लोगों ने, if you remember, that K we wrote it as 9 into 10 to the power 9, if you remember that, right? While using the Coulomb's law. तो वो K अलग है और ये वाला जो K है अलग है. Actually में it's not K. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो this sign we just write it like a K, but it's not a K. It's a sign which is called as kappa. आपने कभी सुना है नाम कप्पा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है आपने? केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो पढ़ा है आपने या पढ़ रहे हो? Yes. तो उसमें भी ये साइन यूज हो रहा होगा कप्पा. पता नहीं आप लोगों को पढ़ा है. हाँ, तो ये कप्पा. खैर, हाँ, इसको ये जरूर कह सकते हो कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, कप्पा को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं. ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया, दिस कैन बी कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मतलब है, बट इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कप्पा का कोई लेना देना उस के साथ नहीं है जो हमने कूलम्स लॉ में यूज किया था. ओके, मूविंग ऑन. इस के को फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ई नेट. ई नेट का मतलब क्या लिख सकते हैं? ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड. इसका मतलब हम ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड कितना है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड कितनी है डिवाइडेड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है. ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हैं रिलेटेड टू द नेट फील्ड व्हिच विल बी इंड्यूस्ड या नेट फील्ड दैट यू विल गेट इनसाइड द डायलेक्ट्रिक इफ अ डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड. मतलब अगर आप किसी भी डायलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रख दो तो जितने रीजन में आपने डायलेक्ट्रिक रखा है उतने रीजन में आपकी फील्ड डिक्रीज हो जाएगी और नेट क्या मिलेगा आपको? तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल गेट द नेट फील्ड, राइट? इसको नोट करिए. अभी और डिस्कशन करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे, फिर उसके बाद हम कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करेंगे. नोट कर लेना तो बता देना ताकि हम लोग आगे पढ़ें. ठीक है, तो दिस इज ओके. Yes, sir, done. Okay, अब listen to few more formulas. कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूँ. पहला तो फॉर्मूला इसको ऐसे समझिए कि when you place a dielectric slab inside an external field, तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस इनसाइड द स्लैब और साथ साथ हमने ये भी देखा कि चार्ज इंड्यूस होता है. तो व्हाट वुड बी द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी? ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कितनी होगी दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. तो देखो हमने बोला कि सर ई नेट की जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड. पहली बात तो हमने ये बोला. अब इससे पहले कि मैं इसमें फर्दर फॉर्मूला यूज करूं, मैं आपको रिमाइंड करा दूं पहले तो
कि अगर मान लो आई एम टेकिंग these two as infinitely long charged sheets या infinitely long plates, charged plates या charged sheets, such that कि इस पे प्लस सिग्मा इज द चार्ज एंड इस पे माइनस सिग्मा इज द चार्ज, तो इस वाले प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा था आप लोगों ने गॉस लॉ में, अगर आपको याद आए तो, यस सर, ठीक है। yes, और sir. इस नेगेटिव वाले की भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही कैपेसिटर में भी ये कॉन्सेप्ट आपने यूज करा है। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो नेट फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, उस एक्सटर्नल फील्ड को आप लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बाय द सेम लॉजिक आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड है उसको आप लिख सकते हो सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पता नहीं सर क्या बोले, देखो एक्सटर्नल को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लॉजिक में अभी समझा चुका हूं। दो अगर प्लेट्स हो हैविंग द सेम चार्ज डेंसिटी एंड ऑपोजिट साइन, तो उस केस में नेट फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर का जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, देन आल्सो वी यूज दिस रिलेशन, राइट। माइनस ऑफ सिग्मा इंड्यूस कितना, तो सिग्मा इंड्यूस विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंड्यूस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नेट को मैं ई एक्सटर्नल बाय के भी लिख सकता हूँ। देखो तो पीछे के फॉर्मूलाज में कोई फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है जिससे हम Yes, ई sir. नेट को ई एक्सटर्नल Yes, बाय sir. के लिख सकते हैं? Yes, sir. सबको दिख रहा है ना, वेरी गुड। तो चलिए सर, इसको फर्दर हम फिर से क्या लिख सकते हैं, ये एक्सटर्नल को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो आपको सिग्मा इंड्यूस निकालना है। तो सिग्मा इंड्यूस क्या होता, सिग्मा इंड्यूस वुड हैव बीन इक्वल टू सिग्मा into 1 minus of 1 by t. This is the induced charge density or the formula for the induced charge density. क्लियर हो गई बात? तो ये आप इस फॉर्मूले से यू कैन फाइंड आउट कि हाउ मच ऑफ द चार्ज विल इंड्यूस ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो एक्चुअली में आपके उस प्लेट्स के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है जिसकी फील्ड में आपने डाइलेक्ट्रिक को रखा है। और दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। मतलब इस डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट होगा, लेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, हर डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट अलग अलग होता है, तो उस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो इन दो फैक्ट्स पे ये डिपेंड करता है। नोट करिए सर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक दो और छोटे छोटे फॉर्मूलाज पे पहले बात कर लें। सर ये फिर उसके कैपिटल बाद के हम है ना, जैसे हमने पिछले लॉज में स्मॉल के हाँ, यूज करा। नहीं इट इज दैट के ओनली। तो वो कप्पा नहीं बनाते, जनरली हम लोग के लिख देते हैं, बट यहाँ जो भी के लिख रहा हूं मैं उसको समझ लीजिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके सर। ठीक है, इज इट डन? फ्यू मोर बेसिक फॉर्मूलाज। सर ये हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो निकाला है, सॉरी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कितना चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगा। बिकॉज हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कहीं से चार्ज आता नहीं है ना उसका चार्ज कहीं से फ्लो करता है। ठीक है, वह उसी के अंदर के चार्जेस हैं जो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं ऑन द टू सरफेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जैसे कंडक्टर में होता है ना, रीअरेंज कर लेता है, वैसे यहाँ पर भी रीअरेंज करता है। ठीक है, यस सर। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, आज कौन कौन से बच्चे एब्सेंट है? आमना है, अनुष्का है, दिव्यांशी है, इंसिया है, टीशा है, मैत्री नहीं है। और कौन नहीं है भाई? आर्यन नहीं है। और किसी को कोई याद आ रहा है जो नहीं है? चलो, मुझे याद नहीं आ रहा, तुम्हें कहां से याद आएगा? खैर, तो ये तो हो गया सर इस पे। अब फर्दर कुछ और बातों पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट, पोलराइजेशन डेंसिटी, और उसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट आएगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, देखिए पोलराइजेशन डेंसिटी का बेसिक मतलब क्या है? तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, ये मानते हो? यस सर। जितना पॉजिटिव चार्ज है इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। आप याद करिए ना कि ये अगर नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेट डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ये भी तो अब मिलेगा आपको। ठीक है भाई, अब
पहले जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था, व्हेन इट वाज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट डाइपोल मोमेंट वाज जीरो। जब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो इसमें डाइपोल मोमेंट तो इंड्यूस हो गया ना। यही तो डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक की, कि डाइलेक्ट्रिक को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में, तो उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द डाइलेक्ट्रिक। तो एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है ना। अब इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें सिंपल करके चीजों को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज आप समझ लीजिए कि लेट सरफेस एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ए। मान लीजिए सरफेस एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ए, और इसका थिकनेस जो है वो थिकनेस मान लीजिए कि कुछ है टी या डी, मान लीजिए जो मन करे आपका, थिकनेस मान लीजिए डी। मैं दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, थिकनेस इज डी। इसका मतलब समझिए, स्लैब का मतलब समझ रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्लैब, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ सर ने बना दी है। ये स्लैब का मतलब ये है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये इट्स अ स्लैब, ठीक है, ये पूरा स्लैब है ना, ये स्लैब है, स्लैब दिखाई दे रहा है, और इसका ये सरफेस है, ये सरफेस। इस सरफेस का जो सरफेस एरिया है दिख रहा है आप लोगों को, इस सरफेस का जो सरफेस एरिया जिसपे चार्ज इंड्यूस हुआ है, विच वी आर ट्रीटिंग लाइक अ प्लेट और इनफाइनाइट चार्ज शीट, जिसको हम इनफाइनाइट चार्ज शीट या प्लेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो ए है, ठीक है, और इस पे चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुआ है, एक तो प्लस सिग्मा, और इसी तरह का दूसरा एक इसका दूसरा सरफेस होगा, इधर वाला दूसरा सरफेस। ये दो सरफेसेस हैं इस पे, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुआ है, एक पे प्लस सिग्मा और दूसरे पे माइनस सिग्मा। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सरफेस हियर? इट्स अ स्लैब, राइट। तो देखो मुझे एक बात बताओ, माइनस क्यू, कैन आई राइट दिस एज माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए, एंड प्लस क्यू कैन बी राइट इट एज सिग्मा इनटू ए? टेल मी यस और नो। यस सर। भाई चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द चार्ज। अगर इफ यू रिमेंबर, चार्ज डेंसिटी वाज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो अगर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज, राइट। अच्छा, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया? जो ये दो सरफेस के बीच का सेपरेशन है जो हमने डी माना हुआ है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कितना हुआ? तो डाइपोल मोमेंट को हम लिख सकते हैं एनी वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन, that is equal to sigma a multiplied by d. Is it clear till here? Please respond. यस सर। Everyone has to tell, right? Everyone has to यस speak. सर। अब मेरी बात, एक बात मुझे बताओ, ध्यान से सोच के मुझे बताओ, एक बात समझाओ, एक बात समझाओ सर, ये जो डाइपोल इंड्यूस हुआ है, is it induced only at a point or it has been induced in the whole of the volume of the dielectric? सो ये सिर्फ एक होल पॉइंट वॉल्यूम। पे इंड्यूस हुआ है या पूरे वॉल्यूम में हुआ है? तो ऐसे ऐसे डाइपोल मोमेंट मतलब नेट डाइपोल है ना, ये पूरे वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट है, पूरे वॉल्यूम में डाइपोल इंड्यूस हुआ है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन पोलराइजेशन डेंसिटी, एंड पोलराइजेशन डेंसिटी इज व्हाट? पोलराइजेशन डेंसिटी डाइपोल मोमेंट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम इज बेसिकली कॉल्ड एज पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको हम क्या लिखेंगे? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिख देंगे, वॉल्यूम, ठीक है, ये लिखेंगे। इसको मैं डाइपोल मोमेंट इंड्यूस का नाम दे देता हूं। इसी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या नाम देते हैं? पोलराइजेशन डेंसिटी। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, हर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पोलराइजेशन डेंसिटी। और वो पोलराइजेशन डेंसिटी हम कैसे लिखेंगे? तो दैट वी विल राइट एज सिग्मा एडी डिवाइडेड बाय एडी। तो इससे ये कैंसिल हो गया। सिग्मा यहाँ पर याद रखिएगा, दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। मैं ये आई लगा दे रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको पढ़ते समय ये चीजें समझ में आ जाए। इसका मतलब ये देखिए, पोलराइजेशन डेंसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू सिग्मा इंड्यूस्ड और नॉट। मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी कितनी होगी? तो जितना चार्ज डेंसिटी होगी। और मैंने ये नहीं बोला कि डाइपोल मोमेंट चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा, मैंने बोला पोलराइजेशन डेंसिटी is exactly equal to the charge density on the two surfaces. So this is the relation between polarization density and the charge density. Did you understand? So, Yes, sir. so, जी सर आपने अभी क्या क्या करा दिया?
कुछ नहीं, दो छोटे छोटे से फॉर्मूलाज बताएं रिलेटेड टू द डाइलेक्ट्रिक। अभी एक और फॉर्मूला बताऊंगा रिलेटेड टू द डाइलेक्ट्रिक। Okay, अभी sir. मतलब बहुत कुछ खास कुछ नहीं हुआ है। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड बेसिक फ्यू फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द डाइलेक्ट्रिक। अभी खास कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो दिक्कत दे आपको। Okay, sir. Thank you, sir. ये नोट करिए। तो एक और छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर आता है, उसके बाद फिर फर्दर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में प्लेस करेंगे एंड देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। Yes, sir, done. ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आई राइट दैट, डोंट वरी। माइत्री, कैन आई इरेज दिस बेटा? Yes, sir. ठीक है। The next point is, it is also a basic definition which you have to remember. Electric susceptibility. ऐसा ही आपको नाम आगे भी मिलेगा इन द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म। वहां पर मिलेगा आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इन मैग्नेटिज्म यू विल गेट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। अब ये ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब है, मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब है, तो इस बात को समझने के लिए पहले जो समझा रहा हूँ वो सुनिए। ये समझिए कि जो आपका कोई भी डाइलेक्ट्रिक होता है उसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है ना, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस जो हो रहा है वो हमेशा, या पोलराइजेशन जो हो रहा है उसके अंदर, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है टू द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन? पोलराइजेशन डेंसिटी। क्लियर है? इसका मतलब है कि आपकी जो पोलराइजेशन डेंसिटी है ना, पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है तो नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, नेट फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ये प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू नेट फील्ड। याद रखिएगा ये ई नेट है, राइट? ये ई नेट है। आपके लिए मैं स्पेशली लिख देता हूँ यहाँ पर कि दिस इज ई नेट। क्लियर? अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो इसको हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट यूज करेंगे। द कांस्टेंट दैट वी आर यूजिंग इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई नेट, ये ऐसे लिखा जाता है। ये वाला जो काई है ना, काई काई काई, इस साइन को हम कहते हैं काई, CHI। ये जो साइन है ना, ये इसको पढ़ते हैं काई, काई चाई, जो पढ़ना है आपको पढ़ते रहिए, CHI। ठीक है, यही जो काई है दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और इसको कैसे लिखते हैं? तो दिस इज रिटन एज P एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय E नेट। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली इट इज नथिंग बट द रेशियो। किस चीज का रेशियो है? पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ये इसका रेशियो है। मतलब इट इज जस्ट अ रेशियो, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। और आपसे कोई पूछे कि व्हाई एप्सिलॉन नॉट हैज बीन यूज्ड इन दिस फार्मूला, देखो क्योंकि आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो कोई एक कांस्टेंट यूज करना होता है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट। तो इफ इट इज अ कांस्टेंट इटसेल्फ, देन व्हाई आर वी यूजिंग एप्सिलॉन नॉट? ये एक मार्क का क्वेश्चन हो सकता है 12th में आए। तो याद रखिएगा कि आप लोगों को सिर्फ ये बताना है टू मेक द डायमेंशंस ऑन आइदर साइड इक्वल, एप्सिलॉन नॉट इज यूज्ड। या आप ये भी कह सकते हो कि ये जो रेशियो है, ठीक है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को यूनिटलेस बनाने के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज होता है। टू मेक दिस यूनिटलेस, एप्सिलॉन नॉट इज यूज्ड बिकॉज इट्स जस्ट द रेशियो, है ना? दो तरीके से याद रख सकते हैं, टू मेक द यूनिट इक्वल ऑन आइदर साइड एप्सिलॉन नॉट इज यूज्ड। या ये कह सकते हो कि एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो, देयरफॉर इट इज यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इसको यूनिटलेस बनाने के लिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का यूज करते हैं, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आप देखिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में कोई आपसे पूछ ले कि क्या है, तो आप क्या कहिएगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में? तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में कहिएगा कि इट इज रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द electric field
एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, किसी भी डाइलेक्ट्रिक का। तो ये बेसिक सा एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का। इससे बेसिकली आपको ये पता चलता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इफ आई प्लेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो हाउ मच ऑफ द डाइपोल मोमेंट विल इंड्यूस पर यूनिट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए कितना डाइपोल मोमेंट या पोलराइजेशन इंड्यूस होगा किसी भी गिवन डाइलेक्ट्रिक में, वो हम इससे पता करते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सर मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी समझ नहीं आई। प्रोपोर्शनैलिटी ये कह रहा है कि जो आपको मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करोगे तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होंगे। यस सर। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, नॉट दैट कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड की वैल्यू क्या है। भाई अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है उसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा इंड्यूस हुआ है। यस सर। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, उसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि कितना डाइपोल ये पोलराइजेशन डेंसिटी है उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ठीक है, तो मोर इज द पोलराइजेशन डेंसिटी, आप ये कह सकते हो कि मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। ओके सर। हो गया, ये लिख लिया। एक और Yes, छोटा sir. सा डेफिनेशन एंड देन वी विल ड्राइव अ रिजल्ट ऑफ कैपेसिटर हैविंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बट उससे पहले एक और छोटा सा रिलेशन, ये सारे जो भी रिलेशन बता रहा हूँ दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू 12th एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए सारे फॉर्मूलाज बता रहा हूँ कि कभी कहीं पर अगर आ जाए तो आपको पता हो ये सारे टर्म्स। एक और चीज है दैट इज रिलेशन बिटवीन के एंड काई। इसका क्या मतलब हुआ? के स्टैंड्स फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या चीज है यहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और काई क्या चीज है? काई, तो काई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। काई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और के क्या चीज है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच हमें रिलेशन पता करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द टू। ठीक है, ये भी एक छोटा सा रिलेशन है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। K इज इक्वल टू 1 प्लस काई आता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। कैसे आता है तो देख लीजिए। आपको मालूम है कि नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कैन बी रिटन एज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड। और आपको ये भी बताया गया है कि ई इंड्यूस्ड कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट? तो ई इंड्यूस्ड कैन बी रिटन एज सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सिग्मा इज एक्जैक्टली इक्वल टू पोलराइजेशन डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? इस सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या किया है? डिड यू अंडरस्टैंड? देखो, Yes, सिर्फ sir. फॉर्मूले का खेल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट फील्ड जो इंड्यूस फील्ड होगी वो कितनी होगी? तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। और हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इंड्यूस। इसलिए सिग्मा इंड्यूस की जगह मैंने क्या रख दिया? पोलराइजेशन डेंसिटी रख दिया। सिग्मा इंड्यूस की जगह पे क्या रख दिया? पोलराइजेशन डेंसिटी रख दिया। तो अगर हमने यहाँ पर पोलराइजेशन डेंसिटी रख दिया तो इसको उठा के यहाँ रख दो। तो इसको अगर उठा के यहाँ रखोगे तो ई नेट को आप क्या लिख सकते हो? देखो, ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अभी थोड़ी देर पहले आपने ये भी पढ़ा है कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू काई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अभी फॉर्मूला पढ़ा है आपने। अच्छा, ई नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय के लिख सकता हूँ, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ई एक्सटर्नल लिख सकता हूँ माइनस ऑफ, ये भी पढ़ा आपने फॉर्मूला कि काई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ये फील्ड हो गई नेट फील्ड। तो एक काम करते हैं, ये नेट फील्ड, ये एक्सटर्नल ई के, तो यहां से फर्दर हम क्या लिख दें? इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? देखो, तो इसको एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दो, ये एक्सटर्नल वाली को एक तरफ कर दो।
एक्सटर्नल वाले को एक तरफ करूं या नेट वाले को? चलिए इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ऑफ काई। ई नेट को फिर से हम लिख सकते हैं ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के। ई एक्सटर्नल विल कैंसिल आउट एवरीवेयर, ठीक है। ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ काई बाई के। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा सर, इस वाले टर्म को अगर हम सॉल्व कर दें क्या आ जाएगा, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई के प्लस ऑफ काई डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा के प्लस ऑफ काई इज इक्वल टू 1, ये तो आ जाएगा। मगर कुछ तो गलत आ रहा है, देखना मैंने कहाँ गलती की है। सर आपने ऊपर वाले ई एक्सटर्नल को डायरेक्टली उस वाले ई एक्सटर्नल से कैसे काट दिया? हम लोगों को पहले एलसीएम ही लेना पड़ेगा। कॉमन लेके काटा, इसीलिए तो 1 माइनस ऑफ काई बाई के बचा। अच्छा अच्छा सर, हाँ सर एलसीएम गलत, एलसीएम के ऊपर जो हमने वैल्यूज करी है वो गलत है। ये 1 बाई के इसको लिख लो, और ये हो गया के माइनस ऑफ काई डिवाइडेड बाई के, ये आ रहा है। यस के से सर। के खत्म, तो के इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ काई, ये आ गया सर आंसर। This is basically the relation k is equal to 1 plus of chi. This is the relation between the electric susceptibility and the dielectric constant. Electric susceptibility और dielectric constant के बीच का ये relation. डन। डन सर। Very good. So these are basic formulas जिस पे कोई बहुत खतरनाक कुछ नहीं आने वाला. You have to remember these formulas. एक एक मार्क के सवाल या एक मार्क का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है. So I am not going into the numerical related to these things, क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा और उसका आप फॉर्मूला यूज करके you will be able to give the result. तो इस पे मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करता. मैं फर्दर आगे की बात पे आता हूँ. तो टॉपिक का नाम डालिए कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. टॉपिक का नाम डालिए कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब किसी कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जाए. कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. अब देखिए सर, एक्चुअली में ये डाइलेक्ट्रिक हमने बीच में इंट्रोड्यूस क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट. तो बेसिकली याद रखो कि जितने भी कैपेसिटर बनते हैं ना, हर कैपेसिटर में बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम प्लेस करते हैं. अच्छा, कंडक्टिंग मटेरियल क्यों नहीं प्लेस करते हैं वो मैं समझाऊंगा अभी, बट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं. एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक के दो काम है. जो सबसे पहला काम डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है वो ये है कि इट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस. उससे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है. किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. समझ में आ गई बात. और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यह है कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. देखो एक्चुअली में समझो, अगर ये एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज और ये दूसरा प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, अगर आप इन दोनों को आसपास रखेंगे तो दे विल गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एम आई करेक्ट? भाई ये दो प्लेट आपने रखा, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, तो दे विल exert a force of attraction on one another. और अगर इसको कोई रोकने वाला नहीं है तो they will finally stick to one another and the capacitor जो है आपका कैपेसिटर that will destroy. Did you understand? अब अगर मैं इसके बीच में सोचो एक स्लैब रख दूं, ऐसे ये स्लैब है इसको हमने रख दिया, तो क्या होगा, ये प्लेट आया बट इसको अब तोड़ के ये इधर नहीं जा सकता. They cannot stick to one another. They will have to be
at this particular distance, which is exactly equal to the thickness of the slab. Am I correct? Tell me yes or no. अरे हाँ ना बोलो. इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का दो पर्पस है. Why do we place dielectric slab inside the capacitor? तो there is two reasons behind that. पहला रीजन क्या है? तो फर्स्ट रीजन is to increase the capacitance, and दूसरा रीजन क्या है? It provides the mechanical strength to the plates. That means the two plate doesn't sticks to one another due to the placement of the slab. Did you understand? आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब increases the capacitance, ठीक है, और दूसरा क्या है? It provides mechanical strength to the plate. या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, it doesn't allows the two plates to stick together. It doesn't allows the two plates to get stick to each other. ठीक है. Now the point is कि सर जब हम कैपेसिटर में डायरेक्टली स्लैब प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि आपने बोला कि भाई कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है तो फॉर्मूला ऑब्वियसली विल हैव टू चेंज. तो आप ध्यान से देखिएगा. ये आपका एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है. मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और ये आपने दो प्लेट्स लिए हैं. एंड रिमेंबर द टू प्लेट्स दैट वी हैव टेकन. यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए. ये एक प्लेट है हमारा कैपेसिटर का, एक कंडक्टिंग प्लेट. दूसरा कंडक्टिंग प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज हियर. ये दो प्लेट्स ऐसे हैं, ठीक है. ये दो प्लेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे हैं. अब इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी थिकनेस T है. T is the thickness of the slab. D is the separation between the two plates of the capacitor. D क्या चीज है बेटा? D separation है. किसके बीच का? D is the separation between the two plates of the capacitor. इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K. तो मैं लिख देता हूं T क्या चीज है? T is thickness of slab. और D क्या है? D separation between the two plates. ठीक है. और A is the area. A is surface area of plates and dielectric slab. प्लेट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो एरिया दैट वी आर टेकिंग इट एज A. तो अब आप सबको मालूम है कि जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देंगे तो उसके अंदर दो तरह के चार्जेस इंड्यूस होंगे. एक सरफेस पे उसके पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, दूसरे वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. ठीक है. ये प्लस सिग्मा I, ये माइनस ऑफ सिग्मा I. दीज आर द चार्ज डेंसिटी. ये माइनस ऑफ सिग्मा I. क्लियर. इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, वो सबको मालूम है. तो किसी भी इंस्टेंट पे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एक्सटर्नल फील्ड बाहर है हमारी, ठीक है, इसको E एक्सटर्नल कह लीजिए. तो किसी भी इंस्टेंट पे इसके अंदर जो नेट फील्ड होगी, डोंट यू थिंक दैट इज E एक्सटर्नल माइनस ऑफ E इंड्यूस्ड? टेल मी यस और नो. यहां तक क्लैरिटी है तो बताओ. यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब एक और पॉइंट समझिए आप. देखो यहां पर ना बस प्रॉब्लम ये कि जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड है वो उतने रीजन में है जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है. The region in which there is no dielectric slab, जिस रीजन में आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है उस रीजन में you have your external field E as a your external field. लेकिन जितने रीजन में you have the dielectric slab उतने रीजन में आपकी जो फील्ड है that will not be exactly equal to E external because उतने रीजन में फील्ड reduce हो जाएगी due to the placement of the slab. Did you understand? Placement of the slab के कारण हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है inside the dielectric region वो अलग होगी और इनसाइड द एयर वाला पार्ट वो अलग होगी. मतलब क्या है? एक्सटर्नल फील्ड यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां. दिस विल बी द एक्सटर्नल फील्ड. ये एक्सटर्नल फील्ड रहेगी. एक्सटर्नल फील्ड जो आपकी E एक्सटर्नल है दैट विल लाई हियर. बट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जो आपकी फील्ड है नेट फील्ड दैट विल लाई इन दिस डायरेक्शन. तो ये फील्ड अलग अलग है. अब सर एक बात समझो, जब हम कैपेसिटेंस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस. कैन एनीबडी टेल मी कि कैपेसिटेंस में ये जो चार्ज होता है ये कौन सा चार्ज होता है? इज इट द चार्ज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक,
और इट इज द चार्ज ऑफ द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर और नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। किसका चार्ज होता है ये? The positive plate of the capacitor. वेरी गुड, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर का चार्ज होता है। तो इसका मतलब है कि चार्ज ऑफ द कैपेसिटर को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई, एक सब्स्टिट्यूशन तो मुझे पता चल गया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ चार्ज। If I can calculate the value of potential difference between the two plates, I'll get the value of capacitance. अगर मैं potential difference calculate कर लूं between the two plates, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो we'll get the value of capacitance. I hope my point is clear to all. Yes, sir. अब who will Yes, tell sir. me? Okay, thank you. Who will tell me now, or who will remind me, कि how can we find the value of the potential difference between the two plates using the formula of electric field? कौन सा वो फॉर्मूला है जो we will be using here to get the value of potential difference? And you have already used that formula in the case of capacitor with air. इससे पहले जब हमने capacitance drive किया था for a capacitor, तो you have already used that formula. तो कोई मुझे बताएगा कि what was that formula? मतलब which relation are we going to E use to dot get the value of D. potential difference? कॉमन वाला. E dot D. E dot D. Potential difference is E into D. वो वाला, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, वैसे भी आप याद रखो ना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो सर सीधी बात है ना कि आप E को D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस। देयर इज नो अदर वे टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अदर देन मल्टीप्लाइंग द फील्ड विद द डिस्टेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो। तो देखो यहाँ पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो यहाँ पर बस ध्यान से सुनना क्या कर रहे हैं। ये जो E एक्सटर्नल है, देखो कुछ रीजन ऐसा है जिसमें फील्ड अलग है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड अलग है। डाइलेक्ट्रिक के बाहर E एक्सटर्नल है, तो ये कितने रीजन में है? ये D माइनस ऑफ T नहीं आया भाई, कितना रीजन? T थिकनेस तो स्लैब का है, Yes, तो sir. ये वाला कितने रीजन में? D माइनस T में, प्लस ये अंदर कितना है? तो अंदर आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, और वो कितने रीजन में है? तो दैट इज इन द रीजन ऑफ T। डिड यू अंडरस्टैंड? अंदर वाली फील्ड को हमने T से मल्टीप्लाई किया बिकॉज इट इज अप टू अ लेंथ ऑफ T, और बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको E एक्सटर्नल कह रहे हैं, दैट इज इन द लेंथ ऑफ D माइनस ऑफ T। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Clear. ठीक है भाई, सब नहीं बोल रहे हैं, एक दो बच्चा ही बोल रहा है। माइत्री, Yes, sir. यहाँ तक बात क्लियर है ना? त्रिशा, सर सॉरी सर, वो बाय मिस्टेक हो गया. Yes. कोई Yes, दिक्कत नहीं, sir. ठीक है। इसको और फर्दर क्या लिख सकते हो? देखो सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। कैन आई राइट दिस E एक्सटर्नल? मैं एक स्टेप ज्यादा करूंगा यहाँ पर, D माइनस ऑफ T एज इट इज। E नेट को कैन आई क्लेम इट टू बी एज E एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय K मल्टीप्लाइड बाय T, क्योंकि Yes, sir. किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होगी वो हमेशा एक्सटर्नल फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगी। You divide the external field by dielectric constant, you will get the E net. इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय D माइनस ऑफ T प्लस ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K मल्टीप्लाइड बाय T। करेक्ट है? Yes, sir. यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, this can be written as D minus of T plus T by K. See who is not yet convinced with this, please ask if you have any doubt. यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो ask, otherwise just note it down till here so that we can finally write the formula. If there is any issue with anyone, तो please पूछिए। Done, sir. Then तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, and now I'll be finally writing the value of capacitance. तो देखो capacitance was charge divided by the potential difference, so you have already calculated the value of charge, और आपने बोला चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय D माइनस ऑफ T प्लस ऑफ T बाय K।
सिग्मा एंड दिस सिग्मा कैंसिल्स आउट, ये दो सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला सिग्मा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए d minus of t plus t by k. This is the formula for the capacitance with the dielectric slab. अगर dielectric slab की जो thickness है, if it is not equal to the separation between the two plates, तो ये formula है। इसी केस में बेटे, इसी केस में अगर ये हो जाए कैपेसिटेंस की वैल्यू if d is equal to t हो जाए, इसका मतलब होल ऑफ द रीजन इज फिल्ड विद द स्लैब, मतलब पूरा रीजन, टी थिकनेस नहीं, टी और डी दोनों बराबर, मतलब होल ऑफ द रीजन इज फिल्ड विद द स्लैब। तो उस केस में ये फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डी प्लस डी बाई के, एवरीवेयर यू विल गेट डी से डी कैंसिल आउट, तो कैपेसिटेंस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस व्हेन यू हैव द स्लैब प्लेस्ड in the whole of the volume, ठीक है, between the two plates। अगर पूरे region में you have the slab placed, तो उस केस में ठीक है सर, तो उस पूरे में अगर हम प्लेस कर दें तो you will get the capacitance as k epsilon naught a by d। क्लियर? यस सर। ये सब लिख लीजिए बेटा, तो अब इसी पे थोड़ी सी PhD हम करें अब। डन सर। वेरी गुड। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया है, तो हम फर्दर आगे बात करते हैं। अब देखो, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूंगा। एक्चुअली में आपने ये देखा कि जितने रीजन में हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया मेरे बच्चे, उतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ। बोलो हाँ कि ना? जो रीजन डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। तो बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज्ड means potential difference also decreased, and since capacitance is equal to charge divided by potential difference, तो इसका मतलब हुआ कि as delta V has decreased, very good, तो capacitance will increase। बहुत बढ़िया। and this is possible because in the region of dielectric the electric field has decreased। अब अगर ऐसा है, ठीक है, तो सर अगर ये कंडक्टर ले लेते हैं हम, कंडक्टर, ठीक है, तो इन कंडक्टर और इन द केसेस ऑफ कंडक्टर हम क्या कह सकते हैं, तो कंडक्टर के केस में इन कंडक्टर्स हम ये कह सकते हैं, इन कंडक्टर्स आपकी जो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर, वो तो एग्जैक्टली जीरो हो जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो ईडी के फॉर्मूले से अगर सॉल्व करोगे, तो इन दिस केस कैपेसिटेंस विल बिकम इनफाइनाइट। करेक्ट है? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, राइट? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो है तो कैपेसिटेंस तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो फिर आप why are we placing dielectric slab, why are we not placing the conducting slab? बिकॉज कंडक्टर होगा, अगर पूरे रीजन में हमने वो फील्ड को जीरो कर दिया, पूरे में फील्ड को जीरो कर दिया, या अगर नहीं भी सोचो, अगर ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस ऑफ टी प्लस टी बाई के, ठीक है, ये फॉर्मूला है फॉर कंडक्टर आपको पता है, फॉर कंडक्टर के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, फॉर कंडक्टर के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो सी की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, बिकॉज ये इनफाइनाइट हो गया तो टी बाई इन्फिनिटी विल बी जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा कैपेसिटेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस जो कि एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाई के है, where k will obviously be less than infinity, ये वाला ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूले में आपको रिजल्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, बिकॉज डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा रिजल्ट उतना बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा रिजल्ट उतना छोटा होगा। अब मुझे बताओ,
कि किसमें कैपेसिटेंस ज्यादा बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करने पर या कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करने पर? कंडक्टिंग स्लैब। भाई इतनी कहानी के बाद इतना तो कम से कम सबको समझ में आ गया होगा कि व्हेन यू विल प्लेस द कंडक्टिंग स्लैब द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ठीक है, एंड इट विल इंक्रीज मोर देन दैट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बात समझ आ रही है यहाँ तक? यस सर। यस सर। क्वेश्चन ये है कि then why we don't place the conducting slab, why do we place the dielectric slab? क्वेश्चन ये है कि when this happens or this is the case, so why don't we place the dielectric conducting slab between the two plates? Why we only place the dielectric slab? सर शायद ये इसलिए क्वेश्चन, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं उसी के अंदर, और कंडक्टर लगाएंगे तो वो बाहर से भी आ सकते हैं। ठीक है, दैट मे बी अ थिंग, बट इसका एक्चुअल जो रीजन है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बिकॉज शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी फॉर्मूला। देखो उसका रीजन ये है कि कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अब सुनना ध्यान से, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि हाफ इंटू क्यू इंटू वी, ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा आपने। वैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं तो हाफ क्यू वी ऐसा पढ़ा आपने, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए, चार्ज को लिख सकता हूँ, यस सर। मल्टीप्लाइड बाई वी। वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन बी रिटन एज इक्वल टू ई बाई डी। नहीं समझ में आएगा तो पूछने का, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हाफ ये 1/2 एज इट इज, ये सिग्मा इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज इक्वल टू, ई कैन बी रिटन एज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डी एप्सिलॉन नॉट। कोई तकलीफ वाली बात? यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तक कोई इशू है तो बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? इसका सर मतलब आपने एनर्जी को v मैं को ऐसे लिख सकता e by d कैसे लिख दिया? हूँ, वी को ए बाई डी मैंने गलत लिख दिया, सर ईडी होगा, सॉरी ईडी होगा, है ना? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी। नाउ इज इट करेक्ट? यस सर। ठीक है, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, गलत तो नहीं कर रहा हूं? इस एडी को लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो यू अपॉन एडी। मैं साथ साथ एक और चीज आपको सिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा बुक में, हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर, राइट साइड में एप्सिलॉन नॉट से आई मल्टीप्लाई दिस टर्म एंड एप्सिलॉन नॉट से आई डिवाइड दिस टर्म। अच्छा, एडी को मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये कैपेसिटर है, इसके प्लेट की एरिया ए है, ये प्लेट की एरिया ए है, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है, तो क्या मैं एडी को दोनों प्लेट के बीच का वॉल्यूम कह सकता हूँ या नहीं? बेटा सोच के देखो। यस सर। यस सर। बेटा सबको आना चाहिए प्लीज, ठीक है? ये दोनों प्लेट के बीच का वॉल्यूम हो गया ना, ये पूरे इस रीजन का वॉल्यूम हो गया एडी। तो इसको मैं कह सकता हूँ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी U, that is the energy, divided by AD is the volume, तो it becomes energy density। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और एक मल्टीप्लिकेशन वाला एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कह सकते हैं। और इसको फिर से हम फाइनली लिख सकते हैं कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। देखिए अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो, एंड दिस विल बी एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम छोटे यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। मेरा तो दोनों ही यू एक जैसा लगता है, बट ये ऐसा समझ लीजिए, ये एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पर ये रिजल्ट है, मतलब एनर्जी का रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, दिस इज द रिलेशन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। पहले बोलो ये बात समझ आई है? ये फॉर्मूला फिर से एक बार अच्छे से देखो, द वे आई हैव ड्राइव्ड दिस रिजल्ट, प्लीज लुक एट दैट एंड टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। तभी मैं उसका आपको रीजन अब दे पाऊंगा कि कंडक्टर क्यों नहीं प्लेस करते। यस सर, आ गए।
सर ये आ एनर्जी गया तो नोट डेंसिटी भी क्या कर होती है, लीजिए। एक बार फिर से बता दीजिए, वो आवाज कट गई। एनर्जी डेंसिटी का बेसिक मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। किसी भी डेंसिटी का बेसिक मतलब यही होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना बेटा। तो दो देखो, एनर्जी किसी पॉइंट पे तो नहीं रहेगी ना। ये जो कैपेसिटर का दो प्लेट है, इसके बीच का जो पूरा रीजन है ना, उसमें एनर्जी स्टोर रहेगी। तो एनर्जी इज नॉट लोकलाइज्ड एट अ पॉइंट, इट इज बेसिकली डीलोकलाइज्ड इन द होल ऑफ द वॉल्यूम। क्लियर। तो इस केसेस में नेट एनर्जी होती है। नेट एनर्जी अगर हम कहते हैं तो नेट एनर्जी में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर मुझे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता करना है तो दैट इज दिस एनर्जी डेंसिटी विच इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नहीं आया? आ गया सर समझ। अब सुनिए, ये फॉर्मूला अभी बताने का रीजन क्या था, अब इसको पहले समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगर आपको स्टोर करनी है, इफ यू वांट टू स्टोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हाँ बोलिए। सर ये U अपॉन AD में हमने जो लास्ट स्टेप करा है, इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने अपनी तरफ से। अच्छा ओके सर। ठीक है, क्यों किया? ताकि इसको मैं इस फॉर्म पे लिख सकूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म। ओके सर। अब सुनिए, अगर आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करनी है तो ये एनर्जी वहीं पर स्टोर होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड in the form of electric field. मतलब if in a region you have an electric field, electrostatic potential energy will be stored. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए यू नीड टू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से जैसे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करना है तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब कंडक्टर के अंदर मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर? 0। 0। तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर is equal to 0, therefore energy stored inside कंडक्टर वो भी 0 होगा। और हम कैपेसिटर बनाते क्यों हैं साहब? तो कैपेसिटर हम बनाते एनर्जी स्टोर करने के एनर्जी लिए, स्टोर करने के लिए। यस। और कंडक्टर ये पर्पस ही पूरा नहीं कर रहा हमारा। तो ऑल्दो कंडक्टर प्लेस करने से भले कैपेसिटी फॉर्मूला वाइज इंक्रीज को हो गई या इनफाइनाइट हो गई, बट पर्पस हमारा सॉल्व नहीं हुआ। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए टू स्टोर द एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो हमारा पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा है। कैपेसिटी कुछ भी करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि व्हाई वी डोंट प्लेस कंडक्टिंग स्लैब बट वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसको नोट करिए खट से एकदम। सारी बातें अगर आपने नोट कर ली है तो आगे बढ़ते हैं। डन सर। वेरी गुड। तो ये तो हो गया कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड यू नाउ नो the reason also कि why don't we place conducting slab and we place the dielectric slab, उसका रीजन भी आपको पता चल गया। now we move to the next point। अब combination of dielectric slab, combination of dielectric slab, combination of dielectric slab मतलब या तो आप एक स्लैब प्लेस कर दीजिए, या इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग वन स्लैब यू कैन हैव मेनी slabs placed in between the two plates। ठीक है, बात वैसे ही है जैसे एक 10 ओम का रेजिस्टर लगा लो, या इंस्टेड ऑफ हैविंग वन रेजिस्टर यू कैन have more than one resistor which gives you the value of resistance equal to 10 ohm। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मुझे कहीं पर 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए एंड यू ओनली हैव द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम अवेलेबल विथ यू, तो आप ऐसे ऐसे 5 2 ओम के रेजिस्टर अगर सीरीज में लगा देंगे तो यू विल अल्टीमेटली गेट द 10 ओम।
तो वही वाली बात है कि वेयर यू नीड सम वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक constant and instead of that material you have other material of other dielectric constant, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप instead of placing one slab you will place number of slabs ताकि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। तो अब देखो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बात समझना कि मान लीजिए ये प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दो तरह से हम स्लैब को इंसर्ट करते हैं। यस बेटे, एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए, मेरा नेट चला गया था। सब मुझे इरेज करना पड़ जाएगा। पिछली स्लाइड में कहां तक लिखा था आपने? पिछली स्लाइड में आपने कुछ लिखा, वो फॉर्मूला लिख लिया था ना, एनर्जी डेंसिटी। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसमें बस आखिरी लाइन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, hence the energy stored, electric field inside the conductor is zero, hence the energy stored will also be zero. Hence electric field, hence electrostatic energy stored will also be zero, which will not fulfill the purpose. मैंने लिखवाया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, hence energy stored in it is also zero, energy stored in it is also zero. Energy stored in it is also zero, which does not fulfill the purpose of a capacitor, which does not fulfill the purpose of a capacitor. और सर एनर्जी डेंसिटी के बाद लास्ट फॉर्मूला क्या था जो U के इक्वल? There is no other. एनर्जी डेंसिटी के बाद कोई लास्ट फॉर्मूला तो नहीं था। ओके सर। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे चर्चा हमारी सुनिए। चर्चा ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, आपको मैं बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास सिंगल स्लैब की उतनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं हो जितना आपको रिक्वायर्ड है, तो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग वन स्लैब आपके जो अवेलेबल स्लैब्स हैं उसको आप यूज करेंगे टू गेट द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है ये डाइलेक्ट्रिक वाला, ये डाइलेक्ट्रिक के साथ ये और इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है ये। तो इस केस में हम करते क्या है, दो तरीके हैं स्लैब को प्लेस करने का। या तो आप ये मान लो कि ये प्लेट है और इस प्लेट के आप पैरेलली स्लैब्स को प्लेस करते जाओ, ये एक स्लैब प्लेस कर दिया, ये दूसरा स्लैब प्लेस कर दिया, ये तीसरा स्लैब प्लेस कर दिया, एंड सो ऑन। ऐसे n नंबर ऑफ स्लैब प्लेस कर दो बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इस तरह से आप स्लैब्स प्लेस कर सकते हो बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सच दैट कि मान लीजिए बेटे कि इसका थिकनेस इज T1, इस स्लैब का थिकनेस, समझ रहे हो ना, ये स्लैब्स हैं T3 T4 अप टू कहां तक, तो अप टू Tn तक, ठीक है। लेट्स से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 अप टू Kn तक। मान लीजिए कि प्लेट्स का सरफेस एरिया इज A, मान लो कि सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स एंड स्लैब इज ए, मतलब प्लेट की सरफेस एरिया और स्लैब की सरफेस एरिया, दोनों की सरफेस एरिया ए है। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो, एरिया वाइज सेम है। क्लियर? तो इस केस में इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं, तो देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग द कैपेसिटेंस एंड आई विल टेल यू हाउ। एक तो फॉर्मूला ये कि भाई कैपेसिटेंस एक तरीका तो ये है कि एप्सिलॉन नॉट ए, ये ड्राइव नहीं किया जाएगा एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेरिवेशन, प्लीज, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट। एक तरीका तो ये कि आप इसमें लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए और मान लो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन इज डी, इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन इज डी, तो ये हो जाएगा डी माइनस ऑफ टी। टी की जगह आप लिखेंगे T1 प्लस ऑफ T2 अप टू कहां तक, अप टू Tn तक।
प्लस ऑफ यहाँ पर एक स्लैब से ज्यादा है तो T1 प्लस ऑफ K1 T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा Tn बाई Kn तक। समझ रहे हैं आप? नहीं आया, नहीं आ आया, गया अरे सर। नहीं आ गया आया, सर। आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इन सारे स्लैब्स का, ये जो स्लैब्स है उन सबका थिकनेस ऐड कर दूं तो डोंट यू थिंक ये डी के बराबर होगा? एज यस T1 सर। प्लस T2 है ना, अप टू कहां तक बेटा? अप टू Tn तक। ये क्या चीज है एक्चुअली में? है तो ये डी, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज द होल ऑफ द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो ये अल्टीमेटली है तो डी। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 बाई K1 प्लस ऑफ T2 बाई K2 and so on and so forth, ठीक है, up to Tn by Kn. This is one way of calculating the capacitance. This is one of the way to calculate the capacitance. ये capacitance calculate करने का ये एक तरीका है, ठीक है। When you have more than of one slabs and all of the slabs are placed parallel to the plates, है ना, मतलब सारे जो slabs हैं they occupies the same surface area। मतलब जैसे ये एक slab है और ये ऊपर वाला plate है, तो the surface area of the slab and the surface area of this plate are same। ठीक है, surface area of the slab, surface area of the plate are same, right? तो ये नीचे वाला फिर इसके बीच में, तो ये सब का surface area अगर सेम हो तो उस केस में ये वाला कॉम्बिनेशन, इसको एक नाम देंगे अभी हम, बट यहां तक ये समझ में आ गया कि इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बाय दिस फार्मूला। सर डी के Yes, साथ sir. वो T1 T2 का एडिशन वगैरह सब कैंसिल हो गया ना, क्योंकि वो इक्वल है। बिल्कुल बिल्कुल, yes, Okay. of course, that is why ये this result is reduced to only T1 by K1 plus T2 by K2 in the denominator. Okay सर। Okay. The second way of analyzing this whole picture is that you can treat each of the dielectric portion as a capacitor. फिर से मेरी बात समझो, एक तो तरीका ये है कि you will write it as epsilon naught A upon D minus T plus T by K, इस फॉर्म पे आप लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका इसी चीज को एनालाइज करने का क्या है कि बोला गया कि सर आप इसको एज ए कैपेसिटर ट्रीट कर लें, इसको एज अ कैपेसिटर ट्रीट कर लें, इसको एज अ कैपेसिटर ट्रीट कर लें, इसी तरह से Cn एज अ कैपेसिटर ट्रीट कर लें, और आप इन सबको अज्यूम कर लें कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब एक बात यहां पर समझना, आई एम कंसिडरिंग ईच ऑफ द स्लैब एज वन कैपेसिटर। अगर मैं आपसे पूछूं क्या फिजिकली हाउ मेनी कैपेसिटर्स डू वी हैव हियर, तो क्या एक कैपेसिटर है या एक से ज्यादा कैपेसिटर है? ये दो प्लेट्स हैं, इसके बीच में हमने बहुत सारे स्लैब्स रखे हुए हैं, तो डू वी हैव वन कैपेसिटर फिजिकली और मोर देन वन कैपेसिटर फिजिकली? So more than one. नो, इट इज ओनली वन। बस यही बात समझनी है आपको। यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी कैपेसिटर्स डू वी हैव, तो वी ओनली हैव वन कैपेसिटर। सर हाउ कैन यू टेल दैट? Sir, one capacitor because the capacitor forms between the two conducting plates. If you have got only two plates, it doesn't matter कि इसके बीच में आप कितने भी slab place कर दो, that will not make any difference with the number of capacitor. नहीं आई बात समझ में भाई? अगर मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, एक तीसरा प्लेट ये है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है इधर, इस पे पॉजिटिव चार्ज है इधर, इस पे नेगेटिव चार्ज है इधर, then I can claim that these are two capacitor. Tell me yes or no? Yes, sir. Yes, sir. बट मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले, अगर प्लेट कंडक्टिंग प्लेट दो ही हैं, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, इसके बीच में आप कुछ भी भरते जाओ, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये एक ही कैपेसिटर है। कितने हैं बोलो 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 सर एक ही है। बोलो? एक ही। एक ही है। नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर आपसे कोई पूछ ले तो कहिएगा एक ही है। तो फिर सर आपने ये क्यों बोला C1 C2 C3 सबको एक एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करो? तो मैं आपको Yes, ये sir. बता दूं कि इतना टाइम होता तो मैं आपको ड्राइव करके ये रिजल्ट बता देता, या अगर आप कहेंगे तो मैं ड्राइव करके भी ये शो कर सकता हूं कि मैथमेटिकली जब इसको सॉल्व किया गया ना, तो मैथमेटिकली वी गॉट द रिजल्ट which was similar to that of what we get in the series combination of capacitor. पता नहीं सर क्या बके। मैं एक बात आपको लॉजिक से अगर समझाना हो मुझे, तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है एसएचएम आप लोगों ने पढ़ा है ठीक ठाक से? सर पढ़ा तो नहीं, था। पढ़ा तो भूल गए था। होगे, भूल गए होगे ना?
पढ़ा था मगर भूल गए होगे ना तुम लोग। चलो सर क्वेश्चन क्या है? नहीं, क्वेश्चन तो बाद में वो था, वो क्वेश्चन तो बाद की बात है। अच्छा मुझे बता सकते हो 2 SHM को हम कैसे ऐड करते हैं? इफ यू हैव 2 SHM, अगर मान लो किसी को ये पता है, अगर ये पता होता तो बहुत आसानी से मैं समझा पाता इस बात को। ये y1 ये y2 इज इक्वल टू a2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t प्लस ऑफ फाइव। आपसे बोला था इन दोनों SHM को ऐड करना है, y1 सुपर पोजिशन होता था, तो व्हाट रिजल्ट डू यू गेट आउट ऑफ इट? तो याद करो कि ऐसा कुछ रिजल्ट आता था, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो, इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, तो आपने रिजल्ट देखा होगा कि 2a1 a2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ फाइव, ये फॉर्मूला बनता है। वेव्स में भी यूज होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। यस सर। नहीं याद आ रहा? नहीं याद आया ना? मोस्ट ऑफ यू डोंट रिमेम्बर दिस। चलो एक छोटा सा प्रूफ कर देता हूँ एकदम खट से, ध्यान से सुनना, कुछ एडिशनल बेनिफिट भी तो हो। इतने बढ़िया मास्टर से पढ़ रहे हो तुम लोग। ठीक है मैं मान गया, मैं बढ़िया नहीं। सुनो, नहीं बोलो, तुम लोग मन में ऐसा बोलने लगे हो, देखो अपनी तारीफ करने लग गया ये। नहीं नहीं सर, ठीक आप है मैं बहुत मान गया बढ़िया। भाई, नहीं नहीं मैं नहीं मान सर। गया भाई। चलिए मैं प्रूफ कर देता हूँ इस बात को कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे सीरीज में मान लेते हैं। आई विल प्रूव दैट। ठीक है, इसका प्रूफ आपके नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में बिल्कुल भी नहीं है, और बिलीव में नहीं है। नॉर्मल क्या, थोड़ी अच्छी किताब भी लोगे तब भी उसमें भी नहीं है, तो इसलिए ध्यान से समझ लो जो मैं सुना रहा हूँ। मान लीजिए कि इसमें हमने K1 स्लैब प्लेस किया और इसमें K2 स्लैब प्लेस किया। यहाँ पर ये d/2 है, ये भी d/2, मतलब दोनों की थिकनेस d/2 है, एरिया A है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें कैपेसिटेंस निकालूं तो हम कैसे निकालें? हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये हमने पढ़ा T1/K1, अभी जो पढ़ा था उस वो पहला वाला रिजल्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इतना, और इसको मैं लिख सकता हूँ इतना, d/2K। कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई दुविधा? नो सर। ये तो सबको समझ आ रहा है कि ये कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला लिखा। अच्छा, इस बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन d ऑफ 2/K1 प्लस ऑफ d/2 ऑफ K2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। कोई प्रॉब्लम है? ऐसा लिख सकता हूं, देख लीजिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ x अपॉन y/z, यस सर, लिख तो सकते इसको हैं। मैं ऐसे लिख दूं तो Yes, 1/z डिवाइडेड बाय x लिख दूं तो एक ही बात होगा या कुछ और बदल Yes, जाएगी sir. बात? नहीं ऐसा सर। लिख सकते हैं? नहीं, तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन d/2, 2 को ऊपर ही रहने दूं अगर, d/2, समझना, कंफ्यूज मत होना। और इसको मैं लिख दूं K1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A। इसको मैं उसी तरह से लिख सकता हूं d/2 K2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड अ फैक्ट। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि एक कैपेसिटर है और इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और ये थिकनेस d/2 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो कैपेसिटेंस, इसका हम क्या लिखते हैं? तो इसका हम कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं? तो इसका हम कैपेसिटेंस लिखते हैं, याद करिए, K एप्सिलॉन नॉट A/d/2। हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस सर, लिखते हैं। यस सर। नहीं आ रहा भाई, सबको आ रहा है? अगर पूरे में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दें तो K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/d लिखते हैं, यही तो करते हैं ना। इसी का अगर हम 1/c कर दें तो क्या यही रिजल्ट d/2 डिवाइडेड बाय K1 एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा या नहीं होगा? सोचो, ये समझो। यस सर, हो जाएगा। ये अगर Yes, समझ सब गए हो तो जाए। बात खत्म हो गई, हो जाएगा। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/c1, और इसी तरह से दूसरा 1/c2 लिख सकता हूँ। ये तो बन रहा है। अगर मैं दोनों को, इसको भी एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर लूं तो उसका ये आ जाएगा। इसी तरह से इसको Yes, मैं sir, एक yes, और sir. कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर लूं तो ऐसे आ जाएगा। तो इसमें 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 आ जाएगा, जो सीरीज के केस में आता है। यस सर। इसका क्या मतलब है? आप इस बात को अच्छे से समझिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये दीज आर मोर देन वन कैपेसिटर। मैंने ये बोला कि जब मैंने इस रिजल्ट को फर्दर सिंप्लीफाई किया ना, तो फ्रॉम दिस रिजल्ट व्हाट आई एम गेटिंग
is same as that of treating the two parts as two capacitors and taking them in series. Because these two results matches each other, तो इसीलिए हम इस केस में कह सकते हैं कि these can be treated mathematically in series. मतलब these can be treated as a capacitor in series mathematically. Mathematically मतलब क्योंकि मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन से वैसा ही रिजल्ट आ रहा है. बट अगर आपसे कोई पूछे कि प्रैक्टिकली हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर, तो आप सिंपली कहेंगे कि देयर इज ओनली वन कैपेसिटर, देयर इज ओनली अ सिंगल कैपेसिटर. डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. नोट कर लो इसको, पहले नोट कर, मतलब वो वाला नोट कर लिया था, ये स्लाइड नोट कर लिया आप लोगों ने, ये जो फर्स्ट वाली स्लाइड है ये पहले नोट कर लिया? यस सर, कर लिया था. तो अब इसको नोट कर लो, ये रीजन भी आपको समझ में आ गया. तो दूसरा तरीका उसी केस में कैपेसिटेंस को लिखने का ऐसे भी है, जो सीरीज में फॉर्मूला यूज होता है वही इसमें हो जाता है. इसीलिए ऐसे अगर स्लैब को प्लेस कर दिया जाए तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कह देते हैं. इसको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम कह देते हैं. बट इट डजंट मीन्स it is more than one capacitor. It is still one capacitor which can be treated as the series combination of more than one capacitor according to mathematics, but not according to physics. I hope my point is clear to everyone. Yes, sir. Okay, just note it down. डन सर. Okay, अब केस नंबर 2, दूसरा केस एक्चुअली में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता भी है. यहाँ पर यू विल बी हैविंग मोर देन वन कैपेसिटर आल्सो, एंड दे विल लुक प्रैक्टिकली, दे विल लुक इन पैरेलल. ठीक है, प्रैक्टिकली एज वेल एज मैथमेटिकली. ये क्या है? तो ये देखिए, ये आप मान लीजिए कि ये स्लैब है आपका, सॉरी ये प्लेट है आपका. लेट दिस बी द प्लेट. ठीक है, ये आपका प्लेट है. ऐसा ऊपर वाला प्लेट भी होगा और ऐसा ही नीचे वाला प्लेट भी होगा. So these are the two plates, and now this time we will not place the slab parallel to the plates, rather we will place the slab perpendicular to the plate. In a sense you can claim that it is placed perpendicular. मतलब अगर मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि पहले स्लैब हम ऐसे रख रहे थे, ऐसे, और ये प्लेट ऐसे थी, तो नाउ आई एम प्लेसिंग द स्लैब लाइक दिस. ठीक है, मतलब इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऐसे. ये एक स्लैब हो गया. ठीक है, ये एक स्लैब हो गया. इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये दूसरा स्लैब होगा. ठीक है, इसी तरह से तीसरा स्लैब एंड सो ऑन. इस तरह से ये K1 है, ये K2 है, ठीक है, ये K3 है एंड सो ऑन. इस तरह से आपने स्लैब्स प्लेस कर दिए. अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि हाउ मेनी कैपेसिटर्स डू वी हैव, तो आप ये कह सकते हैं कि देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स एंड दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब कैसे ऐसा कह सकते हैं सर? लास्ट वाले सिचुएशन में तो नहीं कह रहे थे, अब कैसे कह सकते हैं? तो देखो, इमेजिन करो, अगर आप यहाँ से कट कर दो इसको, यहाँ से इस लाइन का लॉन्ग कट कर दो, तो ये इतना मेटालिक प्लेट और ये इतना मेटालिक प्लेट के बीच में ये स्लैब है या नहीं है? सोच के देखो, K1 वाला. Yes, तो sir. लोग नहीं समझना चाह रहे हो, शायद नहीं समझ रहे हो, शायद ये बात तुम्हें समझ Yes, में sir, नहीं आई कि आया तुम यहाँ से समझ कट कर दो, आ गया. तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव प्लेट है तो नीचे वाला नेगेटिव प्लेट है. तो मतलब each of the dielectric occupies some portion on the plates. ठीक है, तो हर डायलेक्ट्रिक इज शेयरिंग द पोर्शन ऑफ द प्लेट्स. तो हर डायलेक्ट्रिक को अगर मैं अलग अलग कर दूं तो ऑल ऑफ दिस विल बी शेयरिंग सम पोर्शन ऑफ द प्लेट. तो इसलिए हर एक विल बी ट्रीटेड एज अ कैपेसिटर मैथमेटिकली एज वेल एज फिजिकली. और ऊपर वाले पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट्स पे मान लेते हैं तो नीचे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा. तो ये पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, तो सब एक एक कैपेसिटर बन रहे हैं. और अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे ही तो कह सकता हूँ ना कि भाई ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है सच्ची मुच्ची का. ठीक है, नॉट ओनली मैथमेटिकली, ये एक कैपेसिटर है. और इसको अगर हम देखें तो सबका पॉजिटिव ऊपर है
सबका पॉजिटिव वाला ऊपर है तो ऊपर के सारे पोर्शन का पोटेंशियल सेम है, सबका पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, सबका पोटेंशियल सेम, और नीचे वाले सबका पोटेंशियल भी सेम। तो आपको नहीं लग रहा कि पैरेलल है, बिकॉज सबका नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, सबका पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है, तो इज इट पैरेलल और नॉट? यस सर। इसका मतलब यहाँ पर मैथमेटिकली भी आपके कैपेसिटर्स एक से ज्यादा हैं, फिजिकली भी आपके एक से ज्यादा कैपेसिटर्स हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट C इक्विवेलेंट एज नथिंग बट C1 प्लस C2 प्लस C3। इस केस में तो बड़ा आसान सा रिजल्ट है, ये पैरेलल का मतलब पैरेलल ही है। तो अगर डायलेक्ट्रिक ऐसे प्लेस कर दिए जाए तो दिस इज द पैरेलल केस, और ये ऐसे आएगा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, किसी को कोई इशू तो बता सकता है? किसी को कोई इशू तो बता सकता है? नहीं है कोई इशू तो नोट कर लीजिए। Is it done? हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है, तो वेरी गुड। तो आज इतना ही रहने दो, अब नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एंड विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी देन आफ्टर। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद कुछ पैरामीटर्स हैं जो डायरेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट करने पे चेंज होते हैं, तो उन सब पे डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर आई गेस टोटली, राइट? तो थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर।